Okay, so we will start the lecture now. Yesterday, we learned the first principle that can be applied to find the moment of inertia of any area. Now, the good thing about the first principle is it does not require you to have a standard area. Standard area means an area that is generally known to the research community or in general known to anybody. For example, a rectangle is a standard area, a circle is a standard area, a triangle of any shape can be considered as a standard area. Even ellipses are standard areas, but ellipses are a little bit more complicated compared to these guys. So, although it is desirable that you should remember various quantities related to ellipses, how they are constructed, and all, but still, if you are in an urgent need to learn only very important and specific details about geometries, then these three quantities are the most important: rectangles, circles, and triangles. Because even in the case of composite bodies, most probably the question setter would use these three quantities to create a composite. For example, I can create a composite body like this: a square and a semicircle, then a triangle. So generally, even composite bodies are composed of these three standard shapes. So the knowledge about all things, the centroid of a standard shape, the moment of inertia of a standard shape, everything needs to be understood and learnt by heart so that you can use it in your composite sections. Now, before starting today's topic, as a part of revision, as well as a part of something that has to be remembered by you by heart, let us learn the moment of inertia of some standard areas. So the first standard area is your rectangle. Now please also remember that moment of inertia is the second moment. The second moment. Second moment means the moment that comes after the first moment. So if an axis is given, if a mass dm is given, and a distance from the axis is given as, let us say, x, then the first moment of this mass is equal to dm into x. So you can say that I have taken the moment of dm mass about this axis y. Let us say this axis is y. And always remember that the distance should always be measured in such a way so that the distance is measured perpendicular to the axis. Now comes the second moment. If the first moment of dm is simply the product of the distance from the axis and the quantity dm itself, then the second moment is the first moment multiplied by the distance again. So the first moment is already dm into x. So the second moment would be dm into x into again multiplication with x. So it becomes dm into x square. So this is the meaning of second moment. So this obviously would bring a little doubt in your mind, and your mind might be asking you, is a third moment also possible? Is a fourth moment also possible? And so on. Can an nth moment be generated for a quantity dm given like this? Yes. The answer is theoretically, it is possible for you to generate even the nth moment of any quantity. So if I want to say that I need the fifth moment of dm, then you can simply say
that the fifth moment is equal to dm multiplied by x raised to power 5. But the thing is, mathematics allows taking any number of moments, the first moment, second moment, third moment, and so on. But the thing is, whether in the physical world such moments hold any importance or do they hold any meaning at all? So mathematically, you can create any moment, second, third, fourth, fifth, sixth, and so on. But the only thing is, such moments might not be of much importance to anybody in any application. So, first moments you have learned that they are very important. The example of a very important first moment is the moment of a force that you learned in the first unit. इससे पहले जो अपन ने मोमेंट ऑफ फोर्स लिया था, वैरिग्नम्स थ्योरम लिया था, ये सारे के सारे काम जो आप कर रहे थे, आप एक एक्सिस से एक फोर्स की डिस्टेंस निकालते थे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the force and the axis. And if this distance was named as r, then the moment of the force was the quantity, which is the force itself, multiplied by the distance r. So this was the first moment. So rotation in your mechanical world, आपके engine का rotation, गाड़ी का rotation, पहिए का rotation, flywheel का rotation, ये सारी rotations जो energy के expenditure से होती है, these are all made possible by this moment, and which is given another technical term, torque. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये टॉर्क क्या चीज होती है, यू कैन इवन आंसर इट इन द टर्म्स ऑफ द फर्स्ट मोमेंट. आप ये भी कह सकते हो, टॉर्क इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस. वहीं पे आप अपनी डेफिनेशन खत्म भी कर सकते हो. तो फर्स्ट मोमेंट है, तो इसीलिए डिस्टेंस को एक ही बार मल्टीप्लाई किया. Somebody could come up with a new concept. I want to take the second moment of force. Okay, mathematics says go ahead, there is no objection. So you will say force multiplied by r square. But what is the meaning of this? It has got no meaning. The unit will be Newton meter square. Have you ever seen a unit like this? Have you ever experienced a quantity which has some meaning in the real world? Newton multiplied by meter square? No. So, as far as the forces in nature go, only the first moment of forces are useful to us in engineering. Although mathematics says you can go on creating as many moments as you like. But as far as masses are concerned, the first moment, surprisingly or unfortunately, is not of much use. Mass into r, ये काम ही नहीं आती. ये आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है, सरप्राइजिंग भी हो सकता है कि यार फोर्स को जब फर्स्ट मोमेंट से काम बन रहा है, तो मास को फर्स्ट मोमेंट लेने से काम क्यों नहीं बन रहा. इसका रीजन अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे. मे बी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास, और मे बी when I take the concept of radius of gyration, maybe in this class only I will explain. So let us wait for the answer कि ये फर्स्ट मोमेंट से मास का काम क्यों नहीं बनता. या इवन अगर मैं एक एरिया रख दूं छोटा सा dA, तो इसका भी जो फर्स्ट मोमेंट है dA multiplied by r, this is also not much useful to me. I will explain it a little bit ahead of time. थोड़ा सा टाइम के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों नहीं काम आती. तो अगर फर्स्ट मोमेंट काम नहीं आती, तो ऑब्वियसली आपके मन में अगला क्वेश्चन आएगा, तो सेकंड मोमेंट लेके अपन पूछ लें जरा कि भाई ये काम आती है क्या. यस, ये काम आती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास का ले रहे हो तो m into r square. The second moment of mass is moment of inertia of mass, and if you are taking an area, again dA into r square is the moment of inertia of area. The moment of inertia is always defined as the second moment of mass or the second moment of area. The first moment of masses and areas are not useful in mathematics, or rather they are not considered in mathematics or in physics.
फिजिक्स और इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट मोमेंट मासेस का और एरियाज में काम नहीं। एनीवे, with this thing clarified, let us come back to the topic that we discussed yesterday. आपको स्टैंडर्ड शेप्स बताए गए थे और फर्स्ट प्रिंसिपल से इनका आई डिराइव कराया गया था. So we took a small area and I also explained that you have to take a small area DA which is parallel to any given axis. अगर मैं axis ऐसी दे दूं, if the axis that I give you is vertical, then the strip that you have to take should also be vertical. फिर आपको ऐसी स्ट्रिप लेकर के डिफाइन करनी पड़ेगी. Then this will be the distance. In this case, this is the distance. So you integrated the moments of inertia of thin strips to find out the moment of inertia of the entire body. Now the next thing that we have to do is we have to remember the outcome. So I am going to give you these values which you must remember by heart. For a rectangle which has the base B and a height of h, the centroid is already given to you. And if I draw a centroidal xx line and a centroidal yy line also, and the question asked to you is what is the value of ixx for the rectangle, then your answer Sir, should be cube upon 12. yes, BH cube upon 12. BH cube upon 12. it will be bh cube upon 12 and the value of iyy will be HB cube upon 12. hb cube upon 12. So these are two formulae that you have to remember by heart now. ये दो फॉर्मूले आपको याद करके रटने के लिए मैंने अभी जनरेट कर दिया. नाउ लेट अस कम टू द अनदर स्टैंडर्ड एरिया व्हिच इज अ सर्कल. सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबको पता है, सर्कल का जो सेंटर है वो खुद ही होगा. नाउ अगेन आई विल ड्रॉ the xx centroidal axis. I am calling this xx as the centroidal axis because this xx axis is passing through the centroid and thus the name centroidal axis. I draw another centroidal axis which is yy and let me draw a slanted axis also, but this is also centroidal. This is also passing through the centroid and let us give it the name, let us say AB, because we don't know the direction and this is not a standard axis. Standard axes are those which are either exactly horizontal or exactly vertical. But if there is some random axis selected which is neither horizontal nor vertical, then you can give it any name. So let us say this axis is AB. Now my next question is what is IXX? So this is the quantity. If the diameter of the circle is given as capital D, then Ixx is equal to pi d raised to power 4 by 64. The derivation of this was partially explained by me to you yesterday, and I left the task to you guys to finish it up. So if somebody asks you to derive this expression, you should know how to do that. So again, Iyy will not be anything different. It will again be pi d raised to power 4 by 64. No change at all. And if I ask you what is IAB, again the answer is same. It is pi d raised to power 4 by 64. Now one confusion might arise in your minds कि भाई जब रेक्टेंगल का x और y हमने अलग अलग एक्सिस लिए थे तो उसकी i की जो वैल्यू है एक बार तो बी एच क्यूब हो गई थी और एक बार एच बी क्यूब हो गई थी और दोनों अलग है क्योंकि एच और बी अलग अलग है. तो सर्कल के केस में ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है? सर्कल के केस में ये डायमीटर तो सेम ही है ना, डायमीटर तो सब तरह से सेम रहेगा इसलिए. यस, वेरी गुड. डायमीटर बहुत आप इस सर्कल को कैसे भी घुमा फिरा करके देख लो, इन ऑल द डायरेक्शंस द डायमेंशन that goes from one end to another end is the diameter and the diameter is always the same no matter how you look at the circle. तो इसीलिए आप सेंट्रॉइड से पास होने वाली कितनी भी एक्सिस बना दो, 1 लाख करोड़ एक्सिस बन जाएंगी इसके अंदर से,
इन सारे एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू पाई डी रेज टू पावर 4/64 है। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, पाई डी रेज टू पावर 4/64 रट लिया, बिल्कुल रट लिया, और अब जिंदगी भर नहीं भूलना है इसको, क्योंकि इंजीनियरिंग में 8th सेमेस्टर तक तो ये सारे फॉर्मूले जो अभी आपको बता रहा हूँ, पहला बताया मैंने रेक्टेंगल का ph³/12, ये रटा हुआ होना चाहिए। नींद से भी उठा के कोई पूछे तो बोल देना रेक्टेंगल का भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, bd³/12। सर्कल का बताओ, पाई डी रेज टू पावर 4/64, बिल्कुल रटना है। अभी आपके 3rd सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स चल रही है, उसके अंदर तो हर जगह यूज आएगी आपकी ये वैल्यू, एवरीवेयर, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू अनदर स्टैंडर्ड एरिया विच इज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ट्राइंगल का कौन सा पैरामीटर चाहिए हमें। लेट अस नेम द साइड्स ऑफ दिस ए बी सी, and let us say the parameters of the triangle that are given to you are the height of the triangle, and the line segment AB is given as the base of the triangle. तो ये बेस है और हाइट है, ये दोनों चीजें आपको दे रखी है। आपको ये नेसेसरी है ही नहीं कि AC की लेंथ कितनी है, CB की लेंथ कितनी है और AB की लेंथ कितनी है। आपको ये तीनों साइड दिया हुआ होना जरूरी नहीं है, कोई सा भी एक साइड दे दो और उस साइड से वर्टेक्स तक नापी जाने वाली हाइट दे दो। तो अगर आपको ये नहीं दिया तो आप ये भी मान सकते हो कि चलो अगर आप मेरे को ए बी नहीं देना चाहते हो तो BC दे दो, और BC से नापी जाने वाली जो वर्टेक्स तक की हाइट है वो दे दो। So anything would do, but the two parameters that you require to calculate the moment of inertia of a triangle are one side acting as the base and the height measured from that base. तो अब की केस में ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो कोई सी भी एक हाइट और बेस दे दो ट्राइंगल का, उससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएंगे। So let us go back to this figure. ओरिजिनल फिगर में आपको एक बेस दे रखा है, द बेस इज AB एंड द हाइट मेजर्ड फ्रॉम देयर H. नाउ आई एम गिविंग यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल measured along an axis which passes through the base like this. So this is axis AB, straight line passing through the base, and this is given by, good news for you guys, you don't have to make a new formula. It is a very familiar formula coming up. It is BH³/12. Do you remember this formula from somewhere else? सर रेक्टेंगल का था एक्स एक्सिस के अलोंग। Yes, जो रेक्टेंगल का था वही फॉर्मूला है आपका BH³/12। तो अगर आपको कोई रेक्टेंगल दे दे जिसका कि बेस B है, हाइट H है और सेंट्रॉइड से एक एक्सिस पास हो रही है, और आपको कोई ट्राइंगल दे दे जिसका कि बेस यही B है और जिसकी हाइट मेजर्ड फ्रॉम बेस यही H है, तो रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ट्राइंगल के बेस से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये दोनों सेम है। These two areas have the same moment of inertia, but you have to remember the axis also. BH³/12 कौन से एक्सिस पर है? इस एक्सिस पे जो सेंट्रॉइड से पास हो गई। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है? ट्राइंगल का सेंट्रॉइड इस लाइन पे थोड़ी होता है। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड इस हाइट के एक ऐसे पॉइंट पे होगा जो कि H/3 पे होगा। हाँ, H/3 पर। तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड तो यहाँ पर है, तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइडल एक्सिस नहीं लिया अपन ने ट्राइंगल का वो एक्सिस लिया है जो ट्राइंगल के बेस से पास, ठीक है। सो वंस दीज फॉर्मूले आर सेट एंड रिमेंबर्ड बाय यू, नाउ लेट अस come to an interesting discussion. Moment of inertia of partial areas. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और इस छोटे से टॉपिक को अगर आपने समझ लिया
तो इससे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में आसानी से हेल्प मिलेगी. नाउ सी, I have given you a rectangle of side B and H. This is the centroid. I draw a centroidal axis. So the moment of inertia is I xx is equal to BH cube by 12. Now somebody tries to trick you and says, if I cut the rectangle into two equal pieces like this, so this is your x-x axis, and now only the upper part of the rectangle is remaining. I have removed the lower part of the rectangle. इसको मैंने काट करके हटा दिया. So this is now h by 2. This is still b. And now I am asking you, find the moment of inertia of this remaining piece of the rectangle about this same x-x axis. Now please mind that now the x-x axis is not passing through the centroid. अब remaining piece का centroid यहाँ पर आ गया, ये ध्यान रखें. और x-x अब centroidal axis नहीं रही. तो आपसे अब अगर ऐसे किसी एरिया का आई पूछें, देन यू सिंपली से कि रेक्टेंगल को एग्जैक्टली हाफ से काटा है. बोला कि साहब हाँ बिल्कुल हाफ से काटा है. क्या एक्सिस वहीं की वहीं है? बोला कि हाँ साहब एक्सिस वहीं की वहीं है. तो आप सिंपली आई एक्स एक्स जो न्यू है, दैट इज सिंपली आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2. पूछना ही नहीं है कुछ. दिस इज अ ट्रिक which you can verify by finding the moment of inertia using first principle for the new area. इसका आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करके चेक करके देख लो. तो एग्जैक्टली अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपके नए एरिया का आई है कितना, तो आई एक्स एक्स न्यू इज बी एच क्यूब बाय 24. बी एच क्यूब बाय 12 ओरिजिनल का था. एरिया को एग्जैक्टली हाफ में काट दिया और सेंट्रोइडल एक्सिस वहीं की वहीं रखी और उसके अबाउट नए एरिया का पूछा है. तो नए एरिया चूंकि हाफ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो गोज एग्जैक्टली बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को मैं आपसे रिपीट करके दूसरा ट्रिक लगा के पूछ रहा हूँ. आई हैव गिवन यू अ रेक्टेंगुलर एरिया. दिस इज द सेंट्रोइड, दिस इज द एक्स एक्स एक्सिस. And now I cut the rectangle like this into 2 points. So the x-x axis is remaining exactly where it was, but the area of the rectangle is now reduced like this. इस तरह से half होगा. Now please remember that the centroid is shifting towards the right side, but you don't have to worry about the centroid anymore. You just ask the question, क्या rectangle को आपने exactly half में काटा है क्या? बोला yes sir. क्या रेक्टेंगल का जो एक्सिस लिया था वो वही का वही है क्या? यस. तो आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल का आई कितना था? BH क्यूब बाय 12. तो अब आपके नए वाले रेक्टेंगल का भी जो होगा वो BH क्यूब बाय 12 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपने एरिया को हाफ. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो आप किसी भी तरीके से एरिया को जितने फैक्टर में काटते जाओगे, अगर एक्सिस चेंज नहीं हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली उसी फैक्टर से रिड्यूस या इंक्रीज हो जाएगी. ये चीज याद रखोगे तो आपको काफी सारी कैलकुलेशन से बचत मिल जाएगी. तो अगेन गिविंग यू अ न्यू प्रॉब्लम. सर्कुलर एरिया. आई हैव टेकन the vertical centroidal axis, center से पास हो रही है, this is by y. As I have already given you the formula, the I value for a circle is always pi d raised to power 4 by 64. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, कोई जरा बता सकता है क्या? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, मीटर रेज टू पावर 4 होगी इसकी यूनिट. ये मैंने ऐसे ही बीच में पूछ लिया. अच्छा है कि आपको पता है. Okay. Now what I have done is I have let the axis remain where it was.
but now I have taken out one third of the area of the circle and only a quarter part of the circle is remaining. The axis is exactly where it was. तो ये जो बाकी का जो 3/4 पार्ट था ये मैंने रिमूव कर दिया. What is I knew? Sir, pi d raised to power upon 192. सीधे सीधे 1/4 कर दो इसको. एरिया 1/4 हो गया, तो जो ओरिजिनल सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी 1/4 हो जाएगी. गॉट इट? अब उसी तरीके से आपको अगर मैं ट्राइंगल का ट्रिक दूं, सर्कल का दूं, रेक्टेंगल का दूं, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू विल बी एबल टू deduce the new moment of inertia for partial areas also. The only thing that you have to remember is the axis should not be moved. Axis वही की वही होनी चाहिए, तब आप ये 1/4 और हाफ वगैरह कर सकते हो. अब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये रहा भाई रेक्टेंगल आपका, ये आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस. अब आपने रेक्टेंगल को हाफ तो कर दिया, लेकिन अब आप ये पूछ रहे हो कि इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी. तो फटाक से आप ये मत कर देना कि इसकी bh³/12 है, तो इसकी अब इस एक्सिस के अबाउट bh³/12 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि एरिया हाफ हो जाएगा. गलत. bh³/12 का हाफ कौन से एक्सिस के अबाउट होगा? अगर एक्सिस यही की यही बैठी रहती तो होता. आपने एक्सिस ही चेंज कर दी, नया एक्सिस ले लिया, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. अब तो आपको पता करना पड़ेगा अलग से. अब इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, दैट हैज टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली. इट विल नॉट बी हाफ ऑफ bh³/12. तो प्लीज रिमेंबर दिस. ये मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक तो दी है, लेकिन इस ट्रिक से नुकसान ज्यादा भी हो सकता है फायदे की बजाय, अगर आप लोगों ने इस नियम को याद नहीं रखा तो. द रूल दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू इज दैट द एक्सिस शुड नॉट बी चेंज्ड. तो एक्सिस को वहीं रखते हुए आप इस एरिया को ऐसे काटो और छोटे टुकड़े कर दो, कोई दिक्कत नहीं. फिर आपका जितना फ्रैक्शन बन रहा है एरिया का, उसी फ्रैक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड करते हैं. ठीक है? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. एंड नाउ वी मूव ऑन टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन और अ न्यू टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. अभी तक अपन पिछले वाले नॉलेज को थोड़ा सा एनहांस कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे. एक नई चीज तो आपने अभी तक सीखी ली कि पार्शियल एरियाज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्विकली कैसे फाइंड करें अगर एक्सिस चेंज नहीं हो रही. रेडियस ऑफ जायरेशन. अब इसमें देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि पास आउट होने के बाद भी मैकेनिकल इंजीनियर्स से जब ये पूछा जाता है कि भाई के क्या चीज है, तो वो फटाक से बोलते हैं सर रेडियस ऑफ गायरेशन. It is not gyration, it is pronounced as gyration. ठीक है? अभी क्या चीज है रेडियस ऑफ जायरेशन? एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि रेडियस ऑफ जायरेशन आपने 12th क्लास में पढ़ा है, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों से अगर पूछूंगा तो आप, हो सकता है कुछ लोगों को रटा हुआ वो कॉन्सेप्ट पता हो, बट स्टिल मेनी ऑफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बिहाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन. So I will try to explain the radius of gyration to you in a very simple manner. And from now onwards, I would expect that if at any point of time in future, if somebody asks you about the concept of radius of gyration, then you should be able to answer. तो अपन अब देखते हैं कि रेडियस ऑफ gyration क्या चीज है. मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ एंड देन आई विल गिव यू एन इंग्लिश डेफिनेशन फॉर दिस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और इंग्लिश में लिखी हुई लैंग्वेज से अपन को कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्लैरिटी कम आती है. Let us say that I have an area. Let us take a rectangular area so that no further confusion is created. I take an axis, not necessarily the centroidal axis, just some random axis. I will name it as XX because this is purely horizontal. No problem. Now I want to find out the moment of inertia of this rectangle about an XX axis. So I calculated it using the first principle. So whatever way I used, I simply got the value of I-axis. ये मुझे मिल गया. तो x axis के about area of rectangle का I मैंने पता कर लिया. Now I want to ask you
What is the radius of gyration which is denoted by small letter k? ये k जो है ये रेडियस ऑफ जायरेशन को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड मैथमेटिकल नोटेशन है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, ये क्वेश्चन है. तो अब इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों साथ साथ आ जाएगी. रेडियस ऑफ जायरेशन किसी भी एरिया का किसी गिवन एक्सिस के अबाउट वो डिस्टेंस है. तो अब एक डिस्टेंस की बात आ गई तो मैं अब ये एक्सिस, खाली एक्सिस को वापस से बना रहा हूं. ये जो रेक्टेंगुलर एरिया था ये मैंने अभी यहां से गायब कर दिया, या फिर आपकी सहूलियत के लिए मैं इस रेक्टेंगुलर एरिया को डॉटेड बना देता हूं कि यहां था ये एरिया. ठीक है. अब ये पूछा गया है कि इस एरिया का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है एक्स एक्स के अबाउट. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के एक्स एक्स भी लिख सकते हो. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड नोटेशन एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड इन बुक्स आल्सो. तो वही एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन वो डिस्टेंस है. तो एक डिस्टेंस की बात हो रही है तो एक पॉइंट डाल दिया और उसकी डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूं, उसको मैं के लिख दूं. सो दिस डिस्टेंस इज के. ठीक है. और आपको ये भी दिया गया था कि ये जो रेक्टेंगल है इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया जो है वो ए है. ए इज द कंप्लीट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो रेडियस ऑफ जायरेशन उसी गिवन एक्सिस के अबाउट एक ऐसी डिस्टेंस है जिसका कि अगर मैं स्क्वायर करूं और उसको रेक्टेंगल के ओरिजिनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो क्वांटिटी मेरी मैथमेटिकल बनेगी ये ऑटोमेटिकली मेरे उस रेक्टेंगल के आई एक्स एक्स के बराबर आ जाएगी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन. तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. अब इस डेफिनेशन से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करो और चिंतन करो. रेडियस ऑफ जायरेशन इज अगेन नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी गिवन एरिया. तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक रेक्टेंगल दिया है, इस रेक्टेंगल का एरिया फिक्स है क्या? एरिया इज फिक्स्ड. क्या इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड है क्या? नॉट फिक्स्ड. क्यों फिक्स्ड नहीं है? क्योंकि जैसा कि मैंने कम से कम 5 या 6 बार आपको कल से मैं आज तक रिपीट कर चुका हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे निर्भर करती है. सो ऑलवेज एक्सिस की पोजीशन से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर होती है. तो इस रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इस रेक्टेंगल के बेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा. अगर मैं रेक्टेंगल के बाहर से एक एक्सिस खींच दूं और बोलूं कि इस रेक्टेंगल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो वो अलग होगा. तो रेक्टेंगल वही का वही है, एक्सिस बदलते जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलती जाएगी, लेकिन एरिया नहीं बदलता. लेकिन वापस से अगर अपन k की वैल्यू पे आए, k के डेफिनेशन पे आए, तो k जो है ये एक्सिस के साथ में चेंज हो रहा है. अगर आप पूछें कि ऐसा क्यों, तो ये देख लो a इंटू के स्क्वायर, चूंकि आई एक्स एक्स बन रहा है और आई एक्स एक्स खुद एक्सिस के साथ चेंज होता है और एरिया चेंज नहीं होता, तो k जो है वो आई एक्स एक्स के साथ चेंज होगी. तो यानी कि एक्सिस के चेंज होने से k भी चेंज होगा. ये सिंपल सा लॉजिक है. वापस से k की डेफिनेशन को एक बार रिपीट करते हैं. कोई भी रैंडम एरिया ले लो या कोई मास ले लो, अब की बार अपन मास लेते हैं. रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइंड फॉर एरियाज एज वेल एज फॉर मासेस. तो अब मैंने एक मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ मास ले लिया एक बॉक्स या क्यूब के फॉर्म में, और अब की बार मैंने एक वर्टिकल एक्सिस ले लिया और बोला कि सबसे पहले तो आप इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक्सिस के ऊपर. तो अब चूंकि y y एक्सिस दे रखी है, सो आई कैलकुलेट i y y अब ऑफ द मास. ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और निकाल के एक साइड में रख दिया. इसकी वैल्यू मुझे पता होगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k अबाउट y y. रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? तो अब वापस से वही डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूं. k y y एक्सिस के अबाउट वो डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस पे मैंने ले जाके एक डॉट लगा दिया और इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस को मेजर किया तो ये k है.
क्योंकि अपन k को डिस्टेंस बोल रहे हैं कि k वो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जो है वो k खुद ही होगी। तो k वो डिस्टेंस है जिसका कि स्क्वायर किया जाए, तो k का स्क्वायर कर दिया, और आपकी कंप्लीट मास से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपके उस कंप्लीट मास का इस ही एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो अपने आप पैदा होके आ जाएगा। यानी कि k को ऐसी डिस्टेंस पे लेना है आपको कि उसके स्क्वायर को m से मल्टीप्लाई करके आपके द्वारा निकाल के रखी हुई i y y वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि k को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आप ये बोलोगे कि भाई i y y तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ ही है, तो I will put I y y here and then divided by the mass, तो ये k का स्क्वायर हो गया। और अगर मेरे को k निकालना है तो I will simply take the under root of I y y on m। अगर k एरिया का है तो k will be under root of I y y upon t। This is the concept of radius of gyration. Now just listen to what I am explaining to you in English। अब क्योंकि आपको अपने एग्जाम में हिंदी में तो नहीं लिखना है, you have to write the answer or the definition of radius of gyration in English। तो अब इस कॉन्सेप्ट को सिंपली इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, ट्रांसलेट कर लो। तो कॉन्सेप्ट क्या है? रेडियस ऑफ gyration of any given mass or area is that distance measured from the given axis in such a way so that if the square of the distance is multiplied by the mass or area, whichever quantity is in concern right now, then the product of the square of the distance and the quantity will always give you the moment of inertia of the quantity about the same axis। यानी कि k वो डिस्टेंस है जिसका स्क्वायर से अगर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी उस क्वांटिटी की, उस एक्सिस के अबाउट। एंड सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द एक्सिस, सो इज द रेडियस ऑफ gyration। तो रेडियस ऑफ gyration किसी भी वस्तु की चेंज हो जाएगी अगर आपने एक्सिस को चेंज कर दिया तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक मास रखूं और एक एक्सिस यहाँ बनाई, तो इस एक्सिस के अबाउट इसकी k अलग है। अगर इससे थोड़ी दूरी पे एक एक्सिस बना दूं तो इस एक्सिस के अबाउट इसकी k अलग है। इससे और दूर एक एक्सिस बनाऊं तो इसकी k फिर अलग है। So the value of k for the same body will keep on changing with the change of axis। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब अपन ने रेडियस ऑफ gyration का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ रेडियस ऑफ gyration पता करने का। या तो अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप लोग कॉन्सेप्चुअली इसको सॉल्व करें, अदरवाइज यू आर फ्री टू टेक योर पेपर एंड पेंसिल एंड अ कैलकुलेटर एंड गिव मी द आंसर। ठीक है? आई वांट यू गाइस to find the radius of gyration of this rectangle about the x axis if the dimensions of the rectangle are 2 and 1। इसकी हाइट 1 है और इसकी विड्थ 2 है। आई वांट टू फाइंड आउट k x x। बताइए प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी। मैं साथ साथ में जिन लोगों को कंफ्यूजन है या जो लोग इतने आलसी हैं कि कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए मैं भी साथ साथ में कर लेता हूँ, इट डजंट मैटर। पहले तो एरिया निकाल के रखो। एरिया इज 2 × 1 = 2 मीटर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस रेक्टेंगल का कितना है ये आपको पता है, bh³/12 होता है। लेकिन किसका क्यूब करना है? 2 का क्यूब करूंगा कि 1 का क्यूब करूंगा? मैं 1 का क्यूब करूंगा क्योंकि एक्सिस इस साइड को कट कर रही है। तो अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो गया 2 × 1 का क्यूब बटे 12। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है? 2 × 1 का क्यूब इज 2 डिवाइडेड बाय 12 इज 1/6। इसकी यूनिट क्या बनेगी?
3h³/12 की मीटर रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब k के कॉन्सेप्ट के हिसाब से k वो डिस्टेंस है इस x एक्स एक्सिस से जिसका कि अगर मैं स्क्वायर करूं और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल एरिया से, तो मेरे को इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए आपका के, वो डिस्टेंस। ठीक है, तो आई एक्स एक्स आपने कैलकुलेट कर ही रखा है, इट इज 1/6। तो मैं इसको 1/6 रख देता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यूज हियर, 1/6 इज इक्वल टू के एक्स एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है आपका 2। सो इवेंचुअली द वैल्यू सर ऑफ के, 8.83। ठीक है, कैसे आया? दिस इज 1/√12, यही है। यस सर। यस सर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन? देखो डेफिनेशन अपन बार बार क्या बोल रहे हैं, इट इज दैट डिस्टेंस मीटर मेजर्ड स्क्वायर। फ्रॉम एक्सिस। नहीं, मीटर स्क्वायर तो एरिया का यूनिट होता है। मीटर। मीटर, मीटर। मीटर होगी ना यूनिट। सो दिस इज द आंसर, 1/√12 मीटर। तो आपका रेक्टेंगल ये था और एक्सिस ये थी। तो अब अगर आप ये पूछे कि ये के एक्स एक्स कौन सी डिस्टेंस है, तो आप ये एक्सिस बनाओ पहले, और इस एक्सिस से 1/√12 की डिस्टेंस या तो ऊपर चले जाओ या फिर नीचे आ जाओ, कहीं पर भी परपेंडिकुलर मेजर करते हुए, और ये जो डिस्टेंस है यही के है। ऊपर को या नीचे को, कहीं को भी मेजर कर लो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर मैं आपको एग्जाम में 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनाऊं तो आप कर पाओगे क्या? मैंने सर्कल दे दिया और एक्सिस दे दी सेंट्रोइडल, बोला कि के फाइंड करो। ठीक है, सर्कल का एरिया पता है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो के निकल जानी चाहिए। अगर मैं सर्कल देने की बजाय आपको सेमी सर्कल दे दूं और एक्सिस दे दूं और बोलूं कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालो अबाउट दिस एक्सिस, तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, आर यू कॉन्फिडेंट कि कर पाओगे? के की वैल्यू आपको आई निकालना आना चाहिए, एरिया निकालना आना चाहिए, और उसके बाद आई को सीधे सीधे एरिया इंटू के स्क्वायर के बराबर रखना है। बस यही कॉन्सेप्ट है। और वही सेम चीज मासेस के साथ में, अगर मैं मास दे दूं तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर रख देना। एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रेडियस ऑफ gyration. ठीक है, एंड नाउ we move on to the next topic. The next topic is called as perpendicular axis theorem. A very important theorem which is asked in your exams. और हो सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी रखी है। क्या आपने इससे पहले कभी पढ़ा है क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम? 12th क्लास में, 11th क्लास में कभी पढ़ा है? यस सर। यस सर। यस सर, पढ़ा है। पढ़ा है। डेरिवेशंस हैं 11। ये डेरिवेशन मैंने यहाँ पर प्रूफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपके नोट्स में दे रखा है। ये मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोग इसमें से देख करके खुद पढ़ेंगे। ये मैं इसलिए ओमिट कर रहा हूँ। अब और भी ऐसे काफी सारे टॉपिक आएंगे जो आपकी 11th-12th क्लास की फिजिक्स में ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं बहुत स्पीड में स्किप ऑफ करूंगा और उतना डिटेल में क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा जितना कि ये कॉन्सेप्ट्स मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, एंड सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी आपको पता होगी, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है वो क्लास में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपके लिए डेरिवेशन यहाँ पर छोड़ दिया है लिख करके, यू हैव टू डू द डेरिवेशन ऑन योर ओन। मैं सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि कोई सा भी एरिया ले लो, आपकी बार देखो मैं एक ऐसा थोड़ा सा टिल्टेड एरिया ले लूँ, इसकी एक थिकनेस भी बना देते हैं, डज नॉट मैटर, लेट अस टेक सम ऑब्जेक्ट लाइक दिस। और आपको कहा गया कि इस ऑब्जेक्ट का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक ऐसे एक्सिस के थ्रू जो कि इस एरिया पे पड़ी हुई हो।
So there is an axis which is lying on the surface of this object. There is another axis which is lying on the surface of this object, but with an additional constraint that these two axes are perpendicular to each other. And for the sake of convenience, I will give the names of these axes as, let us say this is xx and this is yy. Now please note once again, x axis इस एरिया के ऊपर पड़ी हुई है, y एक्सिस भी इस एरिया के ऊपर ही पड़ी हुई है, लेकिन x और y एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं. And now I bring another axis which is not lying on the surface of the area, but it is perpendicular to the area itself and passing through the point of intersection of the previous two axes. And I am going to name this as Z. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? ये तीनों एक्सिस अब मिल करके इस तरह का ट्रायड बन गए. एक्स यहाँ जा रही है, वाई यहाँ आ रही है, और जेड इन दोनों के परपेंडिकुलर वर्टिकली खड़ी हुई है, यानी कि इस एरिया से ऊपर की तरफ को निकल रही है. ठीक है. So in a way you can say that all the three axes are mutually perpendicular to each other. ये z एक्सिस क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर है तो एरिया पे पड़ी हुई x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी है, और चूंकि z एक्सिस एरिया के परपेंडिकुलर है तो एरिया पे पड़ी हुई y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगी. So the z axis is a vertical axis like this. अगर आपको ये पिक्चराइजेशन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा अलग से बना के दिखाता हूँ कि z एक्सिस कैसे है. ये आपका सरफेस एरिया है, आपकी z एक्सिस वर्टिकली इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक्स इट्स लाइक दिस. इट इज पासिंग थ्रू द एरिया एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया लाइक दिस. और x कहाँ पर पड़ी हुई है? x इस एरिया के ऊपर ही ड्रॉ कर रखी है, और y कहाँ पर है? y भी इस एरिया के ऊपर ही ड्रॉ. This is your z. So if you have a situation like this, then perpendicular axis theorem simply says कि जो एरिया के ऊपर पड़े हुए दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं उसको मैं अगर I x मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लूं और y एक्सिस के अबाउट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I y ले लूं, और अगर ये पूछूं कि एरिया के परपेंडिकुलर एक्सिस z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये सिंपली इस इक्वेशन से रिलेट होते हैं. दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस. ये कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है, तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट, ये क्या आपको क्लियर हुआ क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर. Okay. So if this concept is clear, then my next question to you is this. I have taken a circular area. ठीक है, ये प्योर सर्कल है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड है तो इसीलिए ऐसे ओवल जैसा दिख रहा है. अगर मैं इसको बिल्कुल आपके सामने फेस के सामने रखूं तो इट इज अ परफेक्ट सर्कल. ठीक है. इसकी x एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये अभी शायद आपको याद नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ. पाई डी रेज़ टू पावर 4/64. अब चूंकि ये सर्कल है, इसके x के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ही इसका y के अबाउट भी होगा. दिस इज अगेन गोइंग टू बी पाई डी रेज़ टू पावर 4/64. बट नाउ माय क्वेश्चन इज, what is the moment of inertia of the circle about an axis passing through the circle in such a way that it is perpendicular to the circular area itself and it is passing through the point of intersection of both x and y. So all the axes are mutually perpendicular to each other. Sir, IXX plus IYY. Yes. So IZZ will be given by IXX plus IYY. And why did you get this? Because this is the perpendicular axis theorem. So this is pi d raised to power 4/64
plus pi d raised to power 4 by 64 equal to pi d raised to power 4 by 32. This is your Izz. And from this concept, another concept is derived which is called as polar moment of inertia. ये भी आपसे पूछी जाती है कई बार, ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है कि भाई ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हो सकता है कुछ फॉर्मूले या कुछ डेफिनेशंस आपने याद करी पहले, बट लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एंड विविड एक्सप्लेनेशन ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Polar moment of inertia is the area moment of inertia about any of an area about any axis perpendicular to it. भाई अभी तक अपन क्या करते आ रहे थे, जैसे अभी मैंने अगर रेक्टेंगल सामने आपको सीधे दिखाऊं तो अभी तक आप लोग ऐसी एक्सिस बना रहे थे जो कि इस रेक्टेंगल के ऊपर पड़ी हुई है, ऐसी लेटी हुई है इस रेक्टेंगल पे, ये इस रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे लेटी हुई, और इनके अबाउट आप इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, I इज इक्वल टू 2d³ वगैरह. और अब की बार अगर आपने एक्सिस ही ऐसा ले लिया कि वो एरिया के ही परपेंडिकुलर है, तो आपकी ये जो एक्स एक्स और वाई वाई इसमें कहां से दिख रही है, ये रही आपकी, ये आपकी एक्स एक्स रही और ये आपकी वाई वाई रही. ये एरिया के ऊपर ही ड्रॉ कर रखी है एक्सिस. एंड लुक एट दिस एक्सिस. This axis is just like a pole which is dug into the ground. जैसे अपन झंडा फहराने के लिए उसका एक पोल गाड़ते हैं ना जमीन के अंदर, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से इस रेक्टेंगल को अगर मैं जमीन मान लूं तो ये झंडा फहराने के लिए इसके ऊपर गाड़ा हुआ एक खंबा जैसा एक एक्सिस है ये. तो दिस एक्सिस इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया इटसेल्फ, एरिया के परपेंडिकुलर वर्टिकली ऊपर को खड़ा है. और अगर इस एक्सिस के अबाउट कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की चेष्टा की जाती है, इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है. और ये पोलर वर्ड कहां से आया? बिकॉज द एक्सिस अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड इज अ पोल. जो एक्सिस है जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात कर रहे हो वो एक खंबा है, आपके एरिया के ही परपेंडिकुलर खड़ा है वो. तो चूंकि एक परपेंडिकुलरली खड़े हुए एक्सिस के अबाउट, यानी कि एक पोल के अबाउट, पोल मतलब POLE, पोल खंबा, ठीक है, चूंकि एक पोल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा रहा है इसीलिए इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अब आपको ये पता लग गया. हाँ पूछो. अरे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में यही डिफरेंस है ना, मतलब उस वाले से परपेंडिकुलर वाले से कि ये इसमें एक्स और वाई के परपेंडिकुलर नहीं है. नहीं नहीं, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर तो होगा ना भाई, चूंकि एक्स और वाई तो आपके एरिया के ऊपर ही पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप जो पोल गाड़ रहे हो वो एरिया के ही परपेंडिकुलर है. तो इस एरिया पे मैं कोई सी भी लाइन खींचूं वो सारी लाइंस आपके पोल के परपेंडिकुलर ही होगी, है ना, सीधी सी लॉजिक है. तो x और y तो हमेशा z के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ये प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए Izz इज इक्वल टू Ixx प्लस Iyy अप्लाई करने के लिए एक एडिशनल पॉलिसी भी आपको चाहिए कि xx और yy आपस में भी परपेंडिकुलर होने चाहिए. अगर मैं एक रेक्टेंगल पे रैंडमली दो एक्सिस ले लूं, एक एक्सिस मैंने ये ले ली और एक एक्सिस मैंने ये ले ली, अब ये दोनों आपस में 90 डिग्री नहीं बना रहे, ठीक है, और अब मैं बोलूं कि लो भाई मेरा पोल है, इनके इंटरसेक्शन पे आकर के खड़ा हो गया और ये इधर नीचे से पास हो रहा है, ये अब मेरा ZZ हो गया और मैं इसको XX और YY नाम दे दूं. तो इस केस में Izz विल नॉट बी इक्वल टू Ixx प्लस Iyy. ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके x और y जो कि एरिया पर पड़े हुए हैं वो आपस में 90 डिग्री नहीं बना रहे, लेकिन x और y z के साथ में तो 90 डिग्री बनाएंगे ही बनाएंगे, वो तो कंपलसरी है, क्योंकि z पूरे एरिया के परपेंडिकुलर है और x और y कैसे भी बनाओ वो एरिया के ऊपर ही पड़े हुए हैं, तो z x के परपेंडिकुलर होगा और z y के भी परपेंडिकुलर होगा. लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगे इसकी कंडीशन ये है
कि x और y आपस में भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये चीज याद रखिए आप, ठीक है। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ such instances where the x axis and the y axis are also mutually perpendicular to each other, and then you introduce a pole on it passing through the point of intersection, and in that case the moment of inertia about x axis plus the moment of inertia of this rectangle about y axis will automatically give you the moment of inertia about the polar axis, यानी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी दो ऐसी एक्सिस के इनर्शिया के सम से बन के मिल जाएगी जो कि एरिया के ऊपर ही पड़ी हुई है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट एरियाज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और अगर टाइम रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। एंड सर ये पोलर वाली में भी तो यही हुआ है, इसमें पोलर वाली जो है इसमें भी तो यही हुआ है। बस यही हुआ है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है इसमें, है ना। किसमें, इस वाले एग्जांपल में, हाँ पोलर वाली में। इसमें जो z है वो पोल है, और आई जेड जेड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, लेकिन आई जेड जेड आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के सम से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस केस में, इस वाले केस में y और x एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इसीलिए नहीं मिलेगी। तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो समझाइए आपको, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब x x और y y आपस में भी परपेंडिकुलर हो, और फिर एक ऐसा पोल बनाया जाए जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो। सर वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो पोलर वाली है ना, उसमें क्या है अलग, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। पोलर का मतलब है कि एरिया के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भूल ही जाओ, ठीक है। आप एक एरिया बनाओ, ठीक है, और उस एरिया पे मतलब नहीं है, मतलब इसमें कोई एक्स वाई रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक पॉइंट डालो और उस पॉइंट से इस एरिया के परपेंडिकुलर एक पोल गाड़ दो। ये समझ में आया आपको? इसको नाम दे दो जेड जेड। और अगर आप इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट प्रिंसिपल से ये डिस्टेंस वगैरह नाप करके अगर आप निकालते हो आई जेड जेड, इसमें कोई अपन ने एक्स एक्स वाई वाई कुछ नहीं लिया, तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दिस इज ऑलवेज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिर्फ एक ही मतलब है कि ऐसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एरिया की जो कि उसके किसी पोलर एक्सिस के अबाउट निकाली गई हो। तो अब अगर मैं ये पोल कहीं और गाड़ दूं, अब मैं इस पोल को यहाँ पे लाके गाड़ता हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज तो हो जाएगा, लेकिन इसको भी मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कहूंगा। दिस इज ऑल्सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पोलर कहने के लिए सिर्फ उसका एरिया के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, कुछ नहीं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए उसके ऊपर पड़ी हुई दो एक्सिस और लाते हैं, उन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर होना पड़ता है, और पोलर एक्सिस को उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास भी होना पड़ता है। आ गया। ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए इन तीनों एक्सिस की, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, ठीक है। यस सर। Okay, let me collect your attendance.